سے مظلوم طبقہ سیاستدان ہے. ہمارا اوڑھنا بچھونا سارا کا سارا عوام کے لیے، لیکن آخر میں بدنام سیاستدان ہوتا ہے. پچھلے دنوں بدقسمتی سے ایک ہوا سازش تھی یا پھر حادثہ تھا، جو بھی تھا اس کے لیے جے آئی ٹی بنی ہے، انویسٹیگیشن ہوگی، سب کو پتہ چل جائے گا. پاکستان کا بیسک جو آپ اس کی آئیڈیالوجی دیکھیں، پاک صاف جگہ کو کہتے ہیں. ستان زمین ہو گئی تو پاک زمین ہے. وہ 3 مہمان 4 مہمان کو بلاتے ہیں، سامنے ایک گلاس رکھتے ہیں اور سوال پوچھتا ہے کہ یہ گلاس کس چیز کا بنا ہے. پیپلز پارٹی والا کہتا ہے یہ لوہے کا بنا ہے، پی ڈی آئی والا کہتا ہے یہ تانبے کا بنا ہے، اور پی ایم ایل این والا کہتا ہے یہ شیشے کا ہے. اور اس پوری قوم سے ایک سوال ہے، کیا کسی کمیونٹی نے، کیا کسی سیکٹ نے یہ 2 قومی نظریہ پیش کیا تھا، یا پھر من حیث القوم مسلمان نے بنا کے پیش کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے پریس کلب کے پریزیڈنٹ، ان کی پوری ٹیم اور تمام صحافی بھائیوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 14 اگست کی آزادی کے حوالے سے پریس کلب کی جانب سے پہلی دفعہ آپ نے یہ ایونٹ جو ہے آج آرگنائز کیا ہے. ایک اچھی کاوش ہے. اس کے لیے گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کی طرف سے ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور اس کو ہر سال منانے کے لیے جو بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے اس میں گورنمنٹ کی جو فیسلٹی اس میں ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم، چونکہ یہ ایک کمبائن ہمارا پورے ملک کا ایشو ہے. 75 سال ہمارے اس ملک کو آزاد ہوئے ہم داخل ہو گئے ہیں، اور 1947 14 اگست اس سے 7 یا 7.25 سال پہلے 1940 میں لاہور میں جو قرارداد پاکستان اور اس سے بھی پہلے جب علامہ محمد اقبال نے 2 قومی نظریے کے اوپر ایک خواب دیکھنے کے بعد ایک سٹرگل شروع کرنے کی ایک کوشش کی گئی، اور اس میں بہت بڑے بڑے نام، جن میں قائد اعظم محمد علی جناح جن کی سٹرگل، ان کے ساتھ ان کی ہمشیرہ لیاقت علی خان، یہ بہت سارے ہمارے جو ہیں اس خواب کو پورا کرنے کے لیے، 2 قومی نظریے کو پورا کرنے کے لیے. اب 2 قومی نظریہ کیا ہے؟ وہ 2 قومی نظریہ ہم نے اپنی یوتھ کو بہتر طریقے سے سمجھانے کی، اور اس پیغام کو وقت کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے پہنچائیں. وہ ایک مسلمان، دوسرا نان مسلم کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، عبادات اور ان کا کلچرل ہیریٹیج، وہ ایک نہیں تھے، ایک دوسروں کے ساتھ رہ نہیں پا رہے تھے. تب 2 قومی نظریے کا ایک آئیڈیا سامنے آیا. پھر اس کے ساتھ 23 مارچ کی ہسٹری بہت ساروں کو پتا ہے، نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ جو 2 قومی نظریہ تھا وہ ایک آزادی کے لیے تھا. اب اس آزادی کے لیے جتنے ہمارے پاکستان میں فرقے ہیں، اہل تشیع ہے، اہل سنت ہے، اسماعیلی ہیں، نور بخشی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، میرا اپنے آپ سے اور اس پوری قوم سے ایک سوال ہے، کیا کسی کمیونٹی نے، کیا کسی سیکٹ نے یہ 2 قومی نظریہ پیش کیا تھا، یا پھر من حیث القوم مسلمان نے بنا کے پیش کیا تھا؟ وہ پیش کس لیے ہوا تھا؟ آج ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں، یہ اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے. اور وقت کا تقاضا بھی ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک آزاد کیا گیا، اس کے لیے ہمارے اس دور میں بغیر کسی وردی کی فوج کے ہماری اپنی قوم نے 1947 میں جس طرح جنگیں لڑی. ایک مولوی صاحب اس دور کے
आई थिंक रहमत कुछ इस तरह का उनका वो मौलवी थे, तो वो इस दो कौमी नजरिए से पाकिस्तान एक अलग रियासत बने, एक मुल्क बने, वो उसके मुखालिफ थे। जब पाक व हिंद एक था तो उन्होंने इसकी मुखालफत की, आखिरी दिन तक मुखालफत की। जब पाकिस्तान आजाद हुआ, ये मुल्क आजाद एक ममलिकत की तरफ जाके कामयाब हुआ, तो हिंदुस्तान से लाहौर की जो ट्रेन, पहली ट्रेन में बैठ के वो मौलवी साहब आए, तो उस वक्त एक आधा अखबार हुआ करता था, मीडिया तो नहीं थी। अखबारी एक सहाफी ने उससे सवाल किया, मौलवी साहब आप तो लीड कर रहे थे, इसकी मुखालफत कर रहे थे, आप नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान को अलग रियासत बने, अलग मुल्क बने। अब जब ये मुल्क बन गया है तो सबसे पहली ट्रेन में आप आ गए। उसने बड़ा वाइस जवाब दिया, बड़ी बड़ी समझदारी के साथ। उसने कहा कि ये मस्जिद बनाने से मुझे एतराज था। पाकिस्तान का बेसिक जो आप इसकी आइडियोलॉजी देखें, पाक साफ जगह को कहते हैं, स्तान जमीन हो गई तो पाक जमीन है। और जिस मकसद के लिए इस्लामी नाम से बना दुनिया में दूसरी रियासत है मदीने के बाद, जो इस्लाम के नाम पे बनी है। अब हम दूसरी तरफ आते हैं कि हम तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे। 70s और 60s में दुनिया के आज के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो हमारे मुल्क आया करते थे। उस दौर में भी डिक्टेटरशिप की हुकूमत थी अयूब खान की। यहां के डैम्स के रेवोल्यूशन आ गए, यहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई, और इवन आपका पीआईए इतना हाई प्रोफाइल था कि मलेशिया और इस किस्म के कई ममालिक ने आपके पास आके आपके पीआईए को नकल करके आपसे हेल्प भी लेके, इवन आपका हमसाया चाइना आज सुपर पावर है। अयूब खान के दौर में कर्जा लिया है आपके मुल्क से, और उस वक्त इसलिए नहीं है कि हम जिस तरह से आजाद हुए हैं, हमने अपनी पॉलिसीज इस मुल्क में नहीं बनाई। हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज नहीं है। जिस वक्त हम अपनी पॉलिसीज बनाएंगे, मैं कल चेक कर रहा था और इंटरव्यू सुन रहा था हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का, तो उसने तो उस इंटरव्यू में क्लियर कट ये कहा कि भाई हम क्यों अमेरिका से पूछ के जो है रशिया से गंदम लेके आए या रशिया से तेल लेके आए। उसका इंटरव्यू बड़ा वाइब्रेंट सबने सुना। मकसद ये है कि जब तक अपनी पॉलिसीज खुद न बनाएं, अपनी अवाम की खातिर न बनाएं, और जब तक गरीब अवाम के लिए पॉलिसी न बने, पाकिस्तान की मैक्सिमम पॉलिसीज एलिट क्लास के लिए बनती है। यहां मैं इत्तेफाक करता हूं कि हम जो सबसे ज्यादा जो आपस में उलझते हैं वो हैं सियासतदान। और यह भी कहते हुए फख्र महसूस करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जितने तबका फिक्र आबाद हैं, सबसे मजलूम तबका सियासतदान है। हमारा ओढ़ना बिछोना सारा का सारा अवाम के लिए, लेकिन आखिर में बदनाम सियासतदान होता है। हमारे सामने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में 8 बजे जो हमारे एंकर्स होते हैं वो 3 मेहमान 4 मेहमान को बुलाते हैं, सामने एक गिलास रखते हैं और सवाल पूछता है कि ये गिलास किस चीज का बना है। पीपल्स पार्टी वाला कहता है ये लोहे का बना है, पीडीआई वाला कहता है ये तांबे का बना है, और पीएमएलएन वाला कहता है ये शीशे का है। जिस मकसद के लिए ये मुल्क बनाया गया था, जितनी स्पीड से हमने आगे जाना था, कहां कहां फ्लॉज हैं, कहां कमजोरियां हैं, बगैर किसी ब्लेम गेम के उस तरफ हमें बढ़ने की जरूरत है। पहले अपने, वो कहते हैं पहले घर में फिर मस्जिद में आए। पहले गिलगित बल्तिस्तान के इस अमन को, जो पिछले दिनों बदकिस्मती से एक हवा साजिश थी या फिर हादसा था, जो भी था, उसके लिए जेआईटी बनी है, इन्वेस्टिगेशन होगी, सबको पता चल जाएगा।
साजिश भी अगर थी, किसी और शहर से थी, किसी और सूबे से थी, किसी और मुल्क से थी, तो इस्तेमाल तो मैं हुआ हूं ना, उस साजिश में इस्तेमाल मैं हुआ हूं, मेरा भाई इस्तेमाल हुआ है। तो घर की लगी आग को बुझा के इस इलाके को एक पुरअमन खित्ता हम बनाएं और फिर उसके सम्राट पूरे मुल्क में जाएं। एक मिसाली सूबा हम बना सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान को। 15 से 16 लाख एग्जिस्टिंग आबादी है, 5 से 6 लाख हमारी आबादी पिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में सेटल, टोटल 20 लाख। 20 लाख लोगों के लिए हम तमाम जो 4 सूबे और एक और कश्मीर, इनके लिए हम मिसाल बन सकते हैं। अगर हमारे पास अमन है सबसे पहले तो सब कुछ है। अमन का दूसरा नाम आजादी है। आजाद हम हैं, हमारे आबा अजदाद ने आजाद किया, बाय चॉइस हम पाकिस्तान का हिस्सा बने। टेक्निकलिटीज के ऊपर जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जाएंगे तो फिर बड़ी डिबेट हो सकती है। बावजूद इसके कि जो इससे पहले की हुकूमतों ने यहां पे जो रेवोल्यूशन आ गए, जो हम बेहतरी की तरफ बढ़ते गए, इसको मजीद एक कौम बन के हम कैसे इस इलाके की तरक्की कर सकें। और मैं एक शख्स का नाम कोड करूं, 6-7 महीने पहले शायद अक्टूबर नवंबर में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का मुझे कुछ चांस मिला असेंबली की तरफ से, 1 महीना 3 दिन का कोर्स। उसमें हमारे जनरल महमूद साहब जो यहां पे जनरल थे, वो वहां के डीजी थे, डीजी इसरा। 1 महीना 4 दिनों में यकीन करें हम 60 स्टूडेंट थे, 59 एक तराजू में थे, मैं दूसरे तराजू में था उस पूरी क्लास में। वो जनरल एहसान महमूद की जो मोहब्बत इस इलाके से थी, और उन्होंने एक थीसिस की है हमारे गिलगित बल्तिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए। ऐसे बंदों की भी गिलगित बल्तिस्तान के साथ इस हद तक मोहब्बत है, अगर हम अहद कर लें, हमारी सिविल सोसाइटी है, हमारे मजहबी अकाबरीन हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, सहाफी भाई हैं, सब सोसाइटी मिलके, गिलगित बल्तिस्तान एक घर है, सब ने मिलके, तमाम कम्युनिटीज ने मिलके इस मुल्क को 14 अगस्त को आजाद कराया है, 1 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान को आजाद कराया है। और बाद में जिस तरह अमेरिकन है हमारी जमीनों के लिए, जो पाकिस्तान की जो जमीन है, इसके लिए फर्टिलाइजर जो हमारे पास पहले देसी और ऑर्गेनिक फूड्स के लिए देसी फर्टिलाइजर हमारे जानवरों से जो गोबर है उससे करते थे, बाहर के ममालिक ने अपनी फर्टिलाइजर को सेल आउट करने के लिए, बिजनेस करने के लिए मेरी और आपकी जमीन को नशा करवाया उस फर्टिलाइजर का। आज उसके बगैर मेरी और आपकी सब्जी, आप अनाज उगती नहीं, बड़ी नहीं होती। ठीक इसी तरह बाहर की साम्राज्यी कुव्वतों ने हमारे अंदर बीज बोए हैं, जो तनावर दरख्त बने हैं। आज भी वक्त है उसको काटें, काट के मिल के इस इलाके की तरक्की करें। एक मोहल्ले में जाके मैं सुन्नी बन जाऊं, दूसरी मोहल्ले में जाके मैं अपनी सियासत की खातिर, मेंबरी की खातिर अल्फाज चेंज करूं, तो इस तरह इंसान के कैरेक्टर का भी पता चल जाता है। तो बातें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं आखिर में इस उम्मीद के साथ कि जो हमने बातें की हैं, जो आपने सुना है, सुनने से ज्यादा इसके ऊपर अमल करने की तौफीक दे। एक दफा फिर मैं प्रेस क्लब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपको अपनी जेब से मैं 30,000 रुपये देता हूं, ऐलान करता हूं, और अपनी तनख्वाह पे दूंगा, अभी खाली हो गए, कमिंग तनख्वाह पे आपको 30,000 आपके प्रेस क्लब को। तो बिजली भी आ गई है, ऐलान के साथ ही आपके ऐलान के साथ बढ़ाया था। तो ऐलान में इससे ज्यादा ताकत नहीं है, 30,000 रुपये अपनी जेब से मैं ऐलान करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि हम अपने मुल्क के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में जलाया जा रहा था, तब एक छोटे से परिंदा, अबाबील टाइप के एक परिंदे ने चोंच में कतरा पानी का लेके आया। चरिंद परिंद बोलते थे, दूसरे परिंद ने पूछा इस आपके इस कतरे से ये आग तो नहीं बुझेगी? उसने कहा ये मेरी इस्तिताअत इतनी है। तो हम अपने इस्तिताअत के मुताबिक अपने हिस्से का दिया जलाएं,
اور معاشر کے میدان میں اللہ پاک کے سامنے سب نے جواب تو دینا ہے، تو بس سب اپنے اپنے حصے کا رول پلے کریں. میری 14 اگست کی آزادی کے اوپر یہ لفظ ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ گلگت بلتستان کا امن بہت ضروری ہے، یہ برقرار رہے. ہر سال اس دن میں آنا ہے، یہ مناتے رہیں، اور ہر 5 سال کے بعد سیاست بھی آتی ہے، تقاریر اس وقت کریں گے.